So today we are revising the chapter number 3rd, and that is economic reforms since 1991. So basic idea of this is, as you can see on your screen, that economic reforms, the meaning of economic reforms was set of policies, rules and regulations to achieve economic growth. This was the meaning of economic reforms. Why we need economic reforms? So we explained this concept in my previous class, that we needed economic reforms for the improvement of public sectors, because the public sector was not good at that time. In fact, it was in loss. Second point, you can see adverse balance of payment. Third point, you can see fall in foreign exchange reserves. Next, huge debt on government, inflationary pressure, and all we terms of conditions of World Bank and IMF. तो ये कुछ conditions हम पे लगा दिए गए थे. That's why we were need of emergence of economic reforms. So economic reforms were two main categorized: stabilization measures and structural reforms. तो स्टेबलाइजेशन में क्या करना था कि जो उस समय की हमारी कंडीशंस थी उनको हमको स्टेबलाइज करना था एट ए टाइम इमीडिएट इफेक्ट, और स्ट्रक्चर में हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इंप्रूव करना था. तो दिस वाज द बेसिक आइडिया, एंड फॉर दैट वी यूज व्हाट LPG policy, liberalization, privatization and globalization, that we discussed in our previous class. So on the basis of that, students, we are going to learn some basic questions. So now the first question at your screen is, EXIM policy was announced in the year. So you have to explain or mention the year in which the EXIM policy was announced. So hurry up, students, raise your hands if you know the answer, or you can also send your answers in chat box. ओके, कुछ बच्चों के आंसर्स मुझे मिलने शुरू हो चुके हैं. अब देखिए क्या होता है बेटे, ऐसे क्वेश्चंस में हमको चाहिए कि हम थिंकिंग को थोड़ा सा एलोबरेट करें, जिसमें आप देख रहे हैं कि एग्जिम पॉलिसी. अब ये चैप्टर नंबर 3rd है, एलपीजी पॉलिसी. नेचुरली ये चैप्टर 1991 की पॉलिसी को शो करता है, तो इसका मतलब ए आंसर तो हो ही नहीं सकता. जिसने भी ए भेजा है वो तो टोटली अपने आप पे गलत है. 95 की बात करें तो लेट हो रहा है, 98 और भी लेट हो रहा है, क्योंकि 91 की पॉलिसी तो पहले आ चुकी है. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1992. सो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1992. So yes, option B is perfect answer. Now read this question. Now, since I have received some answers from your side, I am explaining to you. The adjustment says, due to globalization, a country cannot achieve self-sufficiency in food production. So how far you can say that this is a correct statement? Not at all. This is not a correct statement. As you can see that
globalization cannot be a problem in self-sufficiency. So first statement is incorrect. Now, globalization has created a revolution in IT sector. Yes, this is the perfect reason. परफेक्ट स्टेटमेंट है. सो आप अगर ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शंस हमने थोड़े से चेंज कर दिए हैं, आपके जो पैटर्न है उससे अलग हटाकर. तो यहां पर आंसर है बी. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द गिवन रीजन इज करेक्ट बाय इटसेल्फ अलोन. तो जो रीजन है वही अकेला सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है. तो हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है थोड़ा सा, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो. ये इसका ऑप्शन बी है यहां पर. Now students, next question. Read carefully, and the options are the same as the pattern of your CBSE, so there is no reason to be ignore it. Read carefully and send answers. This question, the first question says that the greater operational, financial, and managerial autonomy led to improved efficiency, infused professionalism, and enabled PSUs to compete more efficiently in a liberalized global environment. So yes, it is a perfect, because in 1991 policy, we use all these things. And the reason is that in PSUs, the greater managerial and operational autonomy, taking various decisions to run, and plus public enterprises too, as given as Navratna. So all these statements plus regions are perfect. So option A is the best one for this one. So काफी बच्चों ने मुझे ऑप्शन ए आंसर सेंड किया है, बिल्कुल सही है. So option A is perfect one. You can also take screenshot for this one if you want. Now the next question is, for any doubt you can raise your hands anytime. So yes, answer is A, as you can see. Yes, Rajesh, बोलिए. तो मेरा आपको आंसर इसकी दिया था. बेटे आपका तो नाम बोला भी नहीं ना हमने पहले, तो कोई बात नहीं. Now look at this question and send your answers. Question number 4. So yes, हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस 1991 की जो पॉलिसी में था वो प्रो प्राइवेट सेक्टर को दिया था, क्योंकि हम इसमें प्राइवेटाइजेशन लेकर आए थे. उससे पहले हमारे पास प्रो पब्लिक सेक्टर था, हमने पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया था 1950 से 1990 तक. बट यहाँ 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है, तो नेचुरली है हमारा जो फोकस था वो प्राइवेट सेक्टर पे था. इसीलिए हमने ग्लोबलाइजेशन और क्या नाम है ग्लोबलाइजेशन भी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन दी हमने प्राइवेट सेक्टर को, और साथ में प्राइवेटाइजेशन तो किया ही किया था. So these were the main points for the 1991 policy. So perfect answer is, you can see at your screen also, perfect answer is option B. तो गवर्नमेंट सेक्टर को लिमिटेड काम दिए गए थे, उन्होंने 3 ही सेक्टर अपने पास रखे थे आज की डेट में. उस समय महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कुछ रख लिए थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, this is also a good question. So you can see
द रीजन विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन, दैट मीन्स कि ऐसा रीजन बताइए जो प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस देता है, मीन्स व्हाई वी शुड ऑप्ट फॉर प्राइवेटाइजेशन, या प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में लोग क्यों चले जाते हैं, ऐसा कौन सा इसका बेसिक रीजन हो सकता है। सो यू कैन गो अहेड विथ योर आंसर। सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है तो क्लास में अच्छा लगता है हमको। हार्डली 4 और 5 स्टूडेंट्स ही एक्टिव हैं तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। ऑल स्टूडेंट्स नीड टू सपोर्ट और गिव योर सपोर्ट। अब बेटे कुछ बच्चे मुझे आंसर डी भेज रहे हैं, तो बेटे प्राइवेटाइजेशन क्या सोशल वेलफेयर कर सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। बी है कि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एग्जिट पॉलिसी ऑफ सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस, क्या प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? ये भी एग्जिट पॉलिसी तो नहीं हो सकती थी। तो प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया गया था, और जो उनके अच्छी बात ये है, दे रिड्यूस कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। तो वो क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को कम कर देते हैं, वेस्टेज को कम करके। दैट्स व्हाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर के। तो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर द हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यस विनीत, गो अहेड। सर बट प्राइवेटाइजेशन तो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट करेगा ना, वैसे तो देखा जाए तो। पर वो सिक पब्लिक को तो नहीं करेगा ना, जो सिक पब्लिक एंटरप्राइज है उसको तो नहीं करता ना। ये जो सेंटेंस लिखा है सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए लिखा हुआ, ड्यू टू एग्जिट पॉलिसी ऑफ सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये वर्ड ना हो तो हम मान लेंगे, पर साथ में हाँ सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस दे रखा है, इसलिए नहीं हो सकता। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एरोप्लेन उड़ गया, अगला क्वेश्चन आ गया। ये हमारे उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जैसे हमने पहले आपको बोर्ड में स्टाइल के बताए गए थे कि आपको राइट रॉन्ग लगाने हैं। अगर 3 करेक्ट लग जाते हैं तो ऑप्शन ए है, 2 करेक्ट लगते हैं तो ऑप्शन बी है, और आपका फर्स्ट करेक्ट लगता है तो ऑप्शन सी है, और अगर फर्स्ट इनकरेक्ट लगता है तो ऑप्शन ए है, लास्ट का डी है। अब पढ़िए और पता करिए कि कौन सा सही ऑप्शन है इसका। नाउ लुक, Adjuston says the process of reforms, listen carefully, the process of reforms in India has to be completed in 3 other processes, namely LPG. Yes, it is the perfect one. तो हमने रिफॉर्म जो किया था वो एलपीजी के प्रोसेस से किया था, तो वेरी गुड, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। अब इनका यूज क्या था? लिबरलाइजेशन शोज डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म्स। यस, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि लिबरलाइजेशन या डायरेक्शन दिखाया रिफॉर्म का कि हमें कैसे लिबरलाइजेशन लाना है, कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ करना है। तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज को छूट दी, वेदर दे वांट टू प्रोड्यूस दे कैन प्रोड्यूस, टैक्सेस में रिबेट दी, उनको लोन लेने में हेल्प किया। नाउ प्राइवेटाइजेशन शोज द पाथ ऑफ रिफॉर्म। फिर हमने देखा कि भाई कैसे हम कर सकते हैं, और तो प्राइवेटाइजेशन को हेल्प दे दी कि भाई आप कर लीजिएगा। एंड ग्लोबलाइजेशन अल्टीमेट गोल ऑफ द रिफॉर्म, और बाद में हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ा, सभी वर्ल्ड के साथ जोड़ा, जिससे हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आसान हो गई और हमको बाहर की टेक्निक भी मिलने लगी, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। सो ऑल बिकॉज ऑफ द एलपीजी। सो हेंस वी कैन से adjustion is true, region is true,
also it is the correct explanation of assertion. So perfect option is A. So this is the perfect answer, option A. So this is the answer for this one. If you have any doubt, please raise your hands. Now the next question is very important question, that identify, listen carefully, identify the correctly matched pair of column A to that of column B. So students, these kind of questions are very easy, but you have to read carefully. Question says करेक्टली मैच्ड पेयर, आपको बस इतना पता करना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड पेयर है। तो सारे मैच सही नहीं है, एक कोई ऐसा है जो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देखेंगे क्या वो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा आपका परफेक्टली मैच्ड है। जो ऑलरेडी मैच्ड है बस वही आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन what has been said to you, question says correct matched pair बताना है आपको। तो आप ये ऑप्शन जो 4 है, import exceeds export, that means your export are less than import, ये इसका मीनिंग है। और अगर आपके एक्सपोर्ट कम होंगे इंपोर्ट से तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा। तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि परफेक्टली मैच्ड है, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो परफेक्टली मैच्ड हो सके। क्यों? क्योंकि आप देखिए आइटम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, तो आइटम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की होती है, क्या उनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोलते। आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी, आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी क्या कंपोजिशन फॉरेन ट्रेड? ये भी बिल्कुल नहीं हो सका। इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग का मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन तो बिल्कुल नहीं होता। इनवर्ड लुकिंग का मतलब होता है अपने आप में सीमित रहना, दूसरों से कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा पॉलिसी नहीं यूज करना। तो बेटे तीनों ही हमारे आंसर ये मिसमैच्ड है। ओनली 4 आंसर है जो कि परफेक्टली है। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, this is again the based on the region adjustment based question, so same options apply here. Read carefully. So students, in this question, as you can see, the examiner says that first of all, assertion in 1991, point to be noted, 1991 India met with an extreme crisis relating to its external debt, which forced government of India to revisit its policies. So yes, it is the perfect statement कि 1991 में हम पर बहुत ज्यादा डेप्ट हो गए थे, जिस वजह से हमको अपनी पॉलिसी को फिर से सोचना पड़ा था। फिर रीजन दे रखा है, the government was not able to make repayment on its foreign borrowings from abroad. Even the foreign exchange also dwindled and price rise has also increased. तो ये सब भी हो गया था, हम इसीलिए एक्सटर्नल डेब्ट हमारे पास बढ़ते जा रहे थे। तो ऑल things are perfect in this. Assertion is perfect, region is perfect, and it is also with the related to the assertion. So perfect answer is option A. So A is the perfect answer, as you can see on your screen also. Yes, option A is the perfect answer. You can also take screenshot for this one if you want. Now the next question. Read the question carefully, students. Now, first of all, reading is very important for these kind of questions, students. The first says, assertion says,
economic reforms. That means whatever the economic reforms denote the process in which a government prescribes declining role of state and expanding role of private sector in the economy. तो yes, रिफॉर्म्स का मतलब ही ये है 19 पॉलिसी में कि सरकार अपने अधिकारों को कम करे और प्राइवेट सेक्टर के अधिकारों को बढ़ा दे। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे पास होता है, आर्थिक सुधार, क्योंकि सब कुछ स्टेट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, और जब देश बड़ा हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो सब कुछ स्टेट को करना भी नहीं चाहिए। तो यस, इट इज द परफेक्ट स्टेटमेंट। नाउ इट इज सेफर, अब गवर्नमेंट सेफ साइड भी लेके चलेगी, टू सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज अ पॉलिसी शिफ्ट इन एन इकोनॉमी फ्रॉम वन टू अनदर और अल्टरनेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो सरकार क्या करती है, एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, क्योंकि सेफ होता है। तो इसलिए ये चीज गवर्नमेंट ने भी किया। तो यस, this is based on the first also, so both are the perfect and region is also related to the one, so perfect answer is option A. ये है हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब आपने देखा कि जो टाटा था, टाटा एयरलाइंस 1932 में टाटा एयरलाइंस था हमारे पास में, प्राइवेटली ओन कर रही थी हमारी कंपनी हमारे देश में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेटली आप यूज नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। तो टाटा एयरलाइंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया, उसका अपने अंडर में ले लिया और उसको फिर एयर इंडिया के नाम से चलाया। और अब देखिए लकीली क्या हुआ, 68 ईयर्स के बाद वही टाटा ने उसको एयर इंडिया को बाय कर लिया है। तो हाईएस्ट बिडिंग करके मालिक कौन बन गए वापस, टाटा मालिक बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पे ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको फैक्ट पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं ये कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। Here is the answer for this one. Option is the perfect answer. So just take the screenshot. These are the based on fact कि आपको पता होना चाहिए कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, कितना नहीं। This is has been given from NCERT. So just take screenshot. Now next question is very important question. Again आपको correctly matched pair सर्च करना है। So students, in these kind of questions, it is very important to read carefully what has been written in your exam. So question says that correctly matched pair, आपको correctly matched pair search करना है। It means कि एक ऐसा pair है जो already correct है, and that is the point number 4, need for import substitution. तो import substitution का meaning होता है कि जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो उसे अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर आप अपने ही कंट्री में बनाएंगे तो अब आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो इससे आपकी आत्मनिर्भरता में इंक्रीमेंट होगा। तो परफेक्टली है आंसर ऑप्शन 4। सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन टुडे। थैंक यू वेरी मच, और आप इसको अच्छे से रिवाइज करें इस टॉपिक को।